Hello students, today we will solve question number 3 of exercise 2.2 related to the linear equation in one variable. So let we start now here. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. इसका मतलब ये है कि आइसोस्केलिस ट्रायंगल में जो बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर है. The parameter of triangle is 4 whole 2/15 सेंटीमीटर. उस ट्रायंगल का जो पैरामीटर है, पैरामीटर आप सब जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो जो उसका पैरामीटर है वो 4 whole 2/15 सेंटीमीटर है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स. जो उसकी दो इक्वल साइड्स हैं उसकी लेंथ क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल का फिगर बना लेते हैं. Let we have triangle ABC which are isosceles A B C. इसका जो बेस है अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसकी लेंथ है 4/3 सेंटीमीटर एंड we will find out the length of two equal sides. That we assume that AB and AC are equal here. So we write here let triangle ABC in which AB equals to AC. Both are equal because the name of triangle is isosceles according to question. So we write here AB equals to AC and the length of BC is 4/3 centimeter. Is that clear? Now we have according question parameter. So first of all we will find the both two equal sides length here. So let length of each equal side be x. Okay, so we write here कि यहाँ पर जो दो इक्वल साइड है उसकी लेंथ हमने x मान ली है क्योंकि हमारे पास में पैरामीटर गिवन है और पैरामीटर के लिए हमें तीनों साइड का होना हमारे पास में ज़रूरी है. सो हमने AB और AC को एज्यूम कर लिया है कि वो x है. अकॉर्डिंग क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ isosceles triangle, we have the according question parameter of the isosceles triangle is 4 whole 2/15 centimeter. But as you know that parameter of the isosceles triangle is the sum of all side, so we will write here sum of all side. We can write the parameter sum of all side will be 4 whole 2/15. We will change it into the simple fraction. It will be 15 4 ja 60 and 60 plus 2 62 62/15 centimeter. Now the sum of all side is x plus x plus 4/3 centimeter equals to 62/15 centimeter. As you know that x plus x will be 2x and 4/3 will be transferred to the other side because we will find the value of x. और x कौन है? ये जो साइड इक्वल है उनकी लेंथ हमने एज्यूम की है. सो 62/15 minus 4/3. Is that clear? Now you can see that here we will take the LCM here. LCM of 15 and 3 is 15. When we divide 15 by 15 it goes to one time and 1 multiply 62 give us 62 minus when 15 divided by
3 it goes to 5 time, and 5 multiply by numerator 4 we got here 20. So you can see that here 2x equals to 62 minus 20 will be here 42 and upon 15. As you know that we want to the value of x here, so 2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र होना चाहिए. So we can write here x equals to 42 upon 15, and as you know that 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो यहाँ पे जब ट्रांसफ़र होगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा. नाउ यू कैन सी व्हेन वी कट 42 by 2 we got here x equals to 21 upon 15 centimeter. Now we cut it by 3, so it will be 3 7 ja 21 and 3 5 ja 15. So value of x is 7 upon 5 centimeter, and the x is the length of each equal side. So we write here the length of AB is 7 upon 5 centimeter, and length of AC also is will be 7 upon 5 centimeter. Okay, so I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Once again we repeat it. We have the base of an isosceles triangle is 4 upon 3. The parameter of the triangle is 4 whole 2 upon 15. आपके पास में पैरामीटर है, तो पैरामीटर के लिए तीनों साइड आपके पास में होना जरूरी है. What is the length of either of the remaining equal side? ये जो इक्वल साइड आपके पास में है उनकी लेंथ क्वेश्चन में पूछी गई है कि उसकी लेंथ क्या होगी. सो लेट वी हैव अ ट्रायंगल ABC. हमारे पास में ट्रायंगल ABC है, इसका बेस हमें गिवन है 4/3 सेंटीमीटर. रिमेनिंग साइड की लेंथ हमारे पास नहीं है, तो हमें उसको x एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि उसकी लेंथ x है. अब क्योंकि अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वल है. सो लेट द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड बी x. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन, पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल वी हैव हियर 4 whole 2 upon 15 सेंटीमीटर. ये आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सो वी विल चेंज इट इनटू द सिंपल फ्रैक्शन, एंड द पैरामीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड. सो वी विल स्टार्ट द सम x प्लस x एंड बेस, बिकॉज ये दो तो इक्वल साइड हैं और ये आपके पास में बेस है. फिर हमने 4/3 को ट्रांसफ़र कर दिया, x प्लस x हो जाएगा 2x. एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद में हमने 2 को यहाँ से ट्रांसफ़र किया, कट किया और हमारे पास में आंसर आ गया. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. सम ऑफ 2 नंबर इज 95. 2 नंबर हैं जिनके सम कितना है, 95 है. इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15. एक नंबर दूसरे का 15 ज़्यादा है. ठीक है. फाइंड द नंबर. उन नंबरों को बताइए. देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, वन एक्सीड्स द अदर बाई 15. एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है. तो अगर पहला नंबर पता चल गया तो दूसरा भी हमें पता चल जाएगा. कैसे? जैसे मान लीजिए पहला नंबर x है तो दूसरा उससे 15 ज़्यादा होगा, इसका मतलब x प्लस 15 होगा. सो लेट द फर्स्ट नंबर be x. Okay, let we assume that the first number be x. Now second number will be, as you know that second number will be 15 more than the first number. पहले नंबर का 15 ज़्यादा. So it will be x plus 15, because according to question one x is the other. पहला नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो पहला नंबर हमने x ले लिया और दूसरा नंबर हो जाएगा x plus 15. नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन सम ऑफ 2 नंबर इज 95. अकॉर्डिंग क्वेश्चन इन दोनों नंबर का सम कितना है, 95. तो हम इन दोनों का सम कर लेते हैं, x प्लस x प्लस 15, और ये जो सम है वो कितना है,
95 है। इज दैट क्लियर? नाउ x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। एज यू नो दैट वी वांट टू द वैल्यू ऑफ x here, तो यहाँ से 15 भी ट्रांसफ़र होगा और 2 भी ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले हम 15 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15, so you can see 2x equals to 95 minus 15 will be 80. Is that clear? Now x value will be 80 upon 2 because यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई है, so ये डिवाइड हो जाएगा। When we divide it, so we got here 40, so we got here x value 40. x कौन है? The first number and the second number is x plus 15. तो यहाँ पे so फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर कौन है? x, और x की वैल्यू कितनी है? 40। सो फर्स्ट नंबर बी 40 एंड सेकंड नंबर बी, अब सेकंड कितना है? x प्लस 15, x कितना है? 40। सो सेकंड नंबर विल बी 40 प्लस 15 बिकॉज ये 40 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। सो वी ऐड 15, सो वी राइट हियर 55। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।